Hello students, today we'll start our second chapter, that is central problems of an economy. Every economy do have some central problems, either it is developed, underdeveloped or developing economy. What are the reasons of these central problems? The reasons are every economy do have limited resources, either these are natural resources or man-made resources in contrast to their demands. उनकी नीड्स या डिमांड्स के मुकाबले हर एक इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, चाहे वो हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हों या फिर मैन मेड रिसोर्सेज की. द नेक्स्ट रीज़न इज alternative uses, means every resource has its alternative use. A resource is required to produce more than one good but can be put to use to produce only one commodity at a time. Means a resource can produce more than one good, but at a particular point of time it can only produce one good. At a particular point of time that resource can only be put to use to produce only one good. The others can be produced at other time slots or other particular time periods, or we can say if the resource is used to produce one good, it may exhaust. The others cannot be produced with that resource. मतलब कि एक रिसोर्स एक से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस तो कर सकता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वो एक ही तरह की गुड को या कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकता है. और कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो एक बार एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने में अगर उन रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया है तो दूसरी गुड्स उनसे प्रोड्यूस नहीं की जा पाएंगी. दो दैट रिसोर्स कैन प्रोड्यूस other goods also, but if it is exhausted by producing one good, the others cannot be produced. For example, milk. Milk can be used for drinking purpose, for making curd, for making cottage cheese, for making sweets. Remember, we have limited resources, that means the quantity of the milk will be limited. If we have used it for drinking, the other needs cannot be fulfilled at the same time. अगर हमने दूध को पी लिया है तो उसके साथ उसका कर्ड या फिर जो कॉटेज चीज़ है वो हम नहीं बना पाएंगे, बिकॉज ये वन एंड यूज़ है, एक बार यूज़ करने पे एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमारे पास क्वांटिटी लिमिटेड है. ओके. और in the other example we can say that a resource, if it does not exhaust after one use but at a particular point of time, can be used for a particular purpose only. For example, I can teach more than one subjects, but a particular time slot I can teach one. If I'm teaching economics right now, I cannot teach the other one in this particular time slot. Okay. So economies face central problems due to these two causes. One is limited. Every economy has limited resources, and each resource has their alternate uses. ऐसा नहीं है कि एक resource जो है एक ही commodity produce कर सकता है. वो कैपेबल होता है एक से ज़्यादा गुड्स या एक से ज़्यादा तरह की गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उसको हम देखेंगे कि कौन सी कमोडिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसको प्रोड्यूस करने में उसका यूज़ कर लिया जाएगा. So moving towards our problems, the first problem is what to produce. This is called the problem of choice of goods. इस प्रॉब्लम को हम choice of goods की प्रॉब्लम कहते हैं. So we have a hint. Choice of goods, that means we have more than one good to produce. That's why we have choice of goods. Out of these we have to choose which good is to be produced. So there are two goods, we are taking it two goods, or we are having an assumption that an economy has to produce two goods at a point of time. These are consumer goods and producer goods. Consumer goods, which are ultimately consumed by the consumers to satisfy their needs, say pen, pencil, paper, clothes, food stuff. These are the consumer goods because these are ultimately used to satisfy our needs. The other one is producer goods, which are also called the capital goods. These are the goods which are used to production, in production, or you can say these goods are further used in production process. That's why these are called producer goods. For example, machines, intermediate goods. These goods are used in
production process, or these goods will make further goods or other types of goods. These are also called capital goods. So we have to decide whether consumer goods are to be produced or producer goods are to be produced. In the same or meantime, we also have to decide in what quantities these goods will be produced. Say how much of the consumer goods are to be produced and how much of the producer goods are to be produced. This combination will be used when both the goods are प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली. जब हम दोनों गुड्स को साइमल्टेनियसली एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहे होंगे साथ साथ कि कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस की जाएं और प्रोड्यूसर गुड्स भी प्रोड्यूस की जाएं उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तब हमें डिसाइड करना होगा कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर गुड्स की प्रोड्यूस की जाए, कितनी प्रोड्यूसर गुड्स की. दैट मीन्स अगर हम एक की ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो दूसरे की कम. इफ़ मोर कंज्यूमर गुड्स are to be produced, then less of the producer goods have to be produced and vice versa. So this is the problem of choice of goods. Our next problem is how to produce. That is the problem of choice of technique of production. Okay, again choice of technique of production. That means we have more than one method or technique of production. These are capital intensive and labor intensive. These are the two techniques which are being highly used to produce goods by the producers. The capital intensive technique, or in capital intensive techniques, the producers use more and more machines in contrast to labor force. Producers जो है goods produce करने के लिए machines ज़्यादा use करते हैं labor के मुकाबले. And on the other hand, labor intensive technique, in labor intensive techniques more of laborers are used in contrast to machines. यहाँ पे laborers को ज़्यादा importance दी जाती है. Reason being either the economy is not so developed or don't have the resources, say machines, that's why they are using more of laborers. या तो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांस्ड रिसोर्सेज हो, मशीन्स हो, ठीक है, इसलिए वो लेबरर्स यूज़ करती है. या फिर सेकेंड रीज़न में भी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. इकोनॉमी में या कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्किल्ड रिसोर्सेज अवेलेबल है, दैट्स वाई वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए लेबर पावर ज़्यादा यूज़ करेगी. रीज़न कुछ भी रहा हो तो इन दोनों टेक्निक्स में से हम डिसाइड या चूज़ करेंगे कि प्रोड्यूसर जो है कौन सा रिसोर्स या कौन सा टेक्निक यूज़ करेगा प्रोडक्शन के लिए. We are not providing the solution here, we are discussing only the problem. Solutions will be provided later on. The third problem is for whom to produce. This is the problem of distribution of resources. This we can also say that हमारे पास दो तरह की जो सेक्शंस हैं सोसाइटी में या कैटेगरीज हैं सोसाइटी में जिनको हमने पुअर्स और रिच सेक्शंस में डिवाइड किया है. तो प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड whether he or she has to produce for poor sections or for rich sections. Means वो normal goods poors के लिए जो normal goods हैं वो produce करें या फिर जो rich sections हैं जो premium goods की demand करते हैं, luxury goods की demand करते हैं, तो high quality goods या premium goods produce की जाए या फिर normal goods produce की जाए. Okay, depends on the स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप ऑफ द इकोनॉमी. अगर हमारी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी है तो वो नॉर्मल गुड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी बिकॉज वहाँ पे पुअर सेक्शंस जो है वो लार्जर प्रोपोर्शन में है दैन रिच सेक्शंस. एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो प्रीमियम गुड्स या लग्जरी गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी क्योंकि वहाँ पे रिच सेक्शंस या रिच पीपल ज़्यादा हैं. ओके, ये प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती है? बिकॉज मेनली अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वहाँ पे रिसोर्सेज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है. वी हैव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स व्हाई दीज टू सेक्शंस और दीज टू कैटेगरीज आर हाईली प्रिवेलिंग, पुअर्स एंड रिच, और उनके बीच का जो गैप है वो भी ज़्यादा होता है इन दो इकोनॉमीज़ में मेनली. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रॉब्लम्स. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशंस. द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स इन वेरियस इकोनॉमीज़. अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ हैं जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, अलग अलग इकोनॉमीज़ जो हैं, अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स जो हैं अलग अलग तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. So here we have the problems, what to produce, how to produce and for whom to produce, and different economic structures will provide the solution accordingly. So our first structure is capitalist economy. The capitalist economy where market forces exercise or market forces decide what to produce. That means in capitalist economy, private sector is liberal or free to decide.
तो producers decide which goods are to be produced. And in capitalist economy, if private sector is free and private sector is working for profit making or profit motive, that's why they will produce those kinds of goods which will give more or earn more profits for them. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर फ्री होता है डिसाइड करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स डिसीजन लेते हैं कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है। एंड प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिनसे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता हो, या तो कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो उनको ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स प्रोड्यूस करेंगे वो। ओके, moving towards our next structure, that is socialist economy. In socialist economy, central planning authority or government takes all the decisions. That's why what to produce, that means either consumer goods or producer goods which are to be produced. This decision is made by the government. Government decides which goods are to be produced, and government always prefers social welfare or public welfare. That's why more of consumer goods are to be produced in socialist economic structure. ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है और गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर है, जनता का कल्याण होता है, तो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी ओवर प्रोड्यूसर गुड्स। आर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी एज वी नो highlights all the important features of capitalist and socialist economy. मीन्स पॉजिटिव पॉइंट्स इंक्लूड करती है कैपिटलिस्ट के एंड सोशलिस्ट के, दोनों के ही। तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मार्केट फोर्सेस। मेनली सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, बट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कैपिटल गुड्स ओनली। वो चाहती है कि प्रोड्यूसर गुड्स भी साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो, लेकिन इंपॉर्टेंस कंज्यूमर गुड्स को दी जाएगी यहाँ पे। The next problem is how to produce, and it is solved in capitalist economy. Again, how to produce means the choice of technique. Either capital intensive or labor intensive will be used to produce goods. How the goods will be produced? Either by capital intensive techniques or by labor intensive. In capitalist economy हमने पहले पढ़ा था पिछले पॉइंट में what to produce में, ये capitalist economies में capital goods मशीन्स ज़्यादा प्रोड्यूस की जाएंगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी जो है वो यूज़ की जाएगी मशीन्स की, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही यूज़ करेंगे क्योंकि इन्होंने प्रोड्यूस भी मशीन्स ही की है। तो मेनली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज़ यूज्ड as these are developed economies. Second, socialist economy. In socialist economy, government tries to maximize the social welfare or public welfare. That's why the government is of the opinion to create more and more employment opportunities. सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ में गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के ऊपर ध्यान देती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट करना चाहेगी। फॉर दिस पर्पस लेबर इंटेंसिव टेक्निक विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है यहाँ पे। इन मिक्स्ड इकोनॉमी, अगेन मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है कुछ मार्केट फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेती है। अगेन मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी को फोकस करता है या फिर फॉलो करता है, एंड इंडिया बीइंग द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, यहाँ पे हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो इंडिया जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करता है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ही प्रेफर करेगा, बट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को इग्नोर कर दिया जाता है, बट मेनली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं। सो इन मिक्स्ड इकोनॉमीज मोर ऑफ लेबरर्स अलॉन्ग विद मशीन्स are used to create more and more employment opportunities. And our next problem is for whom to produce, which is related to the distribution of resources. So in capitalist economy, premium goods are produced for rich sections as their motive is to earn profit. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमीज जिनका मोटिव जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, इसलिए वो रिच सेक्शंस के लिए प्रोड्यूस करेंगी क्योंकि वहाँ से उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो महंगी गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगी, एंड जो प्रीमियम गुड्स होती हैं लग्जरी गुड्स होती हैं वो महंगी हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये रिच सेक्शंस के लिए प्रोड्यूस करेंगी एंड पुअर सेक्शंस के लिए कम प्रोड्यूस करेंगी। मूविंग टू द अदर वन, द सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर है, तो ये पुअर सेक्शंस के लिए गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगी क्योंकि वो हाई प्राइसेस अफोर्ड नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई ये सोशलिस्ट इकोनॉमी विल प्रेफर टू प्रोड्यूस नॉर्मल गुड्स ओवर प्रीमियम गुड्स। Moving toward the mixed economy, again government is deciding
सो मोर ऑफ नॉर्मल अलॉन्ग विद द प्रीमियम गुड्स, यहाँ पे हमने मोर वर्ड यूज़ किया है। मोर ऑफ नॉर्मल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड देन रिच और प्रीमियम गुड्स। ये रिच सेक्शंस के लिए लग्जरी और प्रीमियम गुड्स भी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस जो है वो नॉर्मल गुड्स को दी जाएगी, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक्टिंग है, फोर्स एक्टिव फोर्स है, क्योंकि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है।